آج جامعۃ الامام الالبانی کے اس مبارک اسٹیج پر موجود ہیں۔ ان تمام علماء کی فہرست میں سب سے چھوٹا اگر کوئی نام ہے، سب سے چھوٹا اگر کوئی عالم ہے، وہ میں ہوں۔ اس کے باوجود پوری ذمہ داری کے ساتھ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، قرآن کریم کہتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اے لوگو، اگر تمہیں دین نہیں معلوم ہے، علم نہیں جانتے ہو، فتویٰ نہیں معلوم ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو تم ذکر والوں سے پوچھو، عالموں سے پوچھو۔ اس کے اوپر تفسیر کرتے ہوئے ایک بہت بڑے عالم ہیں، مصری عالم ہیں، ان کا نام ہے شیخ عبد الوہاب، شیخ عبد الوہاب الخلاف۔ ان کی یہ کتاب ہے، یہ کتاب مصر کے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، ہندوستان کے بھی بہت سارے مدارس میں یہ کتاب داخل نصاب ہے۔ وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں، بلکہ کتاب کا نام ہے وصول الفقہ۔ اس کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو۔ وہ آگے لکھتے ہیں کہ کسی بھی عبارت کا دو مفہوم ہوتا ہے، دو معنی ہوتا ہے۔ ایک معنی وہ ہے جس کو عبارت النص کہا جاتا ہے، دوسرا معنی وہ ہے جس کو اشارت النص کہا جاتا ہے۔ علماء خوب سمجھتے ہیں، طلباء خوب سمجھتے ہیں کہ عبارت النص کا معنی کیا ہے اور اشارت النص کا معنی کیا ہے۔ عبارت النص کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کا ظاہری مفہوم کیا ہے، اور اشارت النص کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر چھپا ہوا اور کون سا معنی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے علماء اور تمام ذمہ داران، پوری ذمہ داری کے ساتھ میں جہاں پر یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ عبارت النص آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، لیکن آج میں اشارت النص کا وہ مفہوم بیان کرنا چاہتا ہوں جو شیخ عبد الوہاب الخلاف نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ اشارت النص یہ بتلاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے بین السطور کہ آپ کے معاشرے میں، آپ کی کمیونٹی میں، آپ کے اندر ہمیشہ اہل علم کا ایک ٹولہ ہونا چاہیے، اہل علم کی ایک ٹیم ہونی چاہیے، تب نہ لوگ اس کے پاس جائیں گے اور اس سے معنی اور مفہوم پوچھیں گے، اس سے دین پوچھیں گے، اس سے علم حاصل کریں گے۔ پتہ یہ چلا، وہ آگے لکھتے ہیں کہ اگر کسی سماج میں کوئی عالم نہیں ہے، کوئی مفتی نہیں ہے، کوئی دین کا بتلانے والا نہیں ہے، تو اشارت النص یہ کہتا ہے کہ وہاں کے علماء پر، وہاں کے لوگوں پر، وہاں کے ذمہ داروں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اجتماعی طور پر عالم دین کو پیدا کرے، تاکہ قرآن کریم کا یہ مفہوم واضح ہو کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ گاؤں والے اگر مسئلہ پوچھیں گے تو کس کے پاس جائیں گے؟ یقیناً وہ ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو اجتماعی طور پر اس کا انتظام ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ان مدرسوں کو لوگوں نے ہلکے میں لیا ہے، لیکن آج مجھے کہنے کی اجازت دی جائے کہ کیا عشق نے جانا ہے، کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، کیا حسن نے سمجھا ہے۔ ان خاک نشینوں کے ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ آج اس مجلس میں وہ کوچ بہار اور دین ہاٹا کے پاس کے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں۔ 2013 کا واقعہ ہے، میں وہاں گیا تقریر کرنے کے لیے، علماء کے بیچ میں ہندوستان بھر کے علماء یہاں موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ بیان کروں کہ آج بھی ہمارے ہندوستان میں ایسا علاقہ ہے کہ وہاں کے لوگ آئے، لوگوں نے کہا شیخ میں 200 کلومیٹر کی دوری سے آیا ہوں، کسی نے کہا 300 کلومیٹر کی دوری سے آیا ہوں، کسی نے کچھ اور کہا۔ اسی میں سے ایک نے کہا کہ شیخ ہمارے وہاں کا حال یہ ہے کہ جب کسی کی موت ہو جاتی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ملتا، کبھی کبھی 1 دن 2 دن 3 دن تک ہم لاش کو، میت کو سامنے رکھتے ہیں تاکہ کوئی عالم دین، کوئی حافظ قرآن آئے اور جنازے کی نماز پڑھائے اور اس کو دفن کیا جائے۔ یہ میں کسی کا واقعہ نقل نہیں کرتا، میرے نوجوانوں، میرے علماء اور میرے لوگوں، میں اپنا واقعہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا اللہ، ہمارے علاقے میں علماء کو کوئی پوچھتا نہیں، نیچی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اور یہاں عالم یہ ہے کہ انہیں عالم نہیں ملتا۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ میرے بھائیوں، جہاں عالم نہیں ہے ان سے پوچھو کہ جنازہ اس کی امی کا کون پڑھائے گا، اس کے ابو کا جنازہ کون پڑھائے گا، اس کے گود میں ننھا سا بچہ اگر دم توڑ دیتا ہے
कौन उसका जनाजा पढ़ा करके कब्र के अंदर उतारेगा? पूछो उन गांव वालों से जहां पर कोई आलिम नहीं है कि जुमा का खुतबा कौन देगा? कौन बताएगा कि हलाल क्या है? कौन बताएगा कि हराम क्या है? कौन बताएगा सही क्या है? कौन बताएगा कि गलत क्या है? मदरसा, ये मदरसा है जो आपकी इन बुनियादी इस्लामी ज़रूरतों की तकमील करता है। ये मदरसा है मेरे भाइयों। बात में लंबी नहीं करना चाहता, उलमा की तवील फहरिस्त है और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपने बच्चों को जो आज इस जामियतुल इमाम बुखारी के, जामियतुल इमाम अलबानी के हवाले किया है, ये मामूली चीज़ नहीं है, ये मामूली चीज़ नहीं है। और आज मुझे याद आया तो फिर सुनिए कि अगर आप इखलास नीयत के साथ अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को और बेटों को अगर दीन की तालीम हासिल करने के लिए मदरसा भेजते हैं अल्लाह की रजामंदी के लिए, तो सुनो, कम से कम इस दुनिया में आपकी 3 नस्लें महफूज हो जाएंगी। 3 नस्लें महफूज हो जाएंगी। नंबर 1 जिसने नीयत की, नंबर 2 जिसके लिए आपने मिन्नत की है, और नंबर 3 उसके बाद एक औरत है इमरान की बीवी, नीयत के अल्लाह मेरे पेट में जो है मैं तेरे हवाले करना चाहती हूँ, आज़ाद कर देना चाहती हूँ, तेरी वो बच्चा या बच्ची जो भी हो तेरी खिदमत में मसरूफ़ रहे। लेकिन हमल का डिलीवरी का वक्त आया, बेटी पैदा हो गई, कहा कि या अल्लाह मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ, बेटी है तेरे हवाले में कैसे करूँ? अल्लाह ने कहा कि नहीं, तुमने जो नीयत की है तकमील करो, बाकी चीज़ मेरे हवाले है। और फिर उसने दुआ भी मांगी थी, फतक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। बेटी पैदा हो गई, अल्लाह के हवाले किया। वो बेटी मरियम थी। कौन? मरियम से कौन पैदा हुआ? बोलो कौन? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। कम से कम नकद 3 इनाम इस दुनिया में और आखिरत में जो मिलने वाला है अल्लाह बेहतर जानता है कितना मिलेगा। तो आप भी अगर अपने बच्चों को इस मदरसे में डालना चाहते हैं या किसी भी मदरसे में डालना चाहते हैं तो खालिस नियत करें कि हम अपने बच्चे को यहाँ डॉक्टर बनाने के लिए नहीं, इंजीनियर बनाने के लिए नहीं। यकीनन मैं उससे नहीं रोकता, इस्लाम भी उससे नहीं रोकता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप मदरसे में अपने बच्चों को भेजते हैं खालिस नियत कर लें, अल्लाह रास्ता हमवार करेगा। फिर इसी में से कोई वो होगा जो जामिया सल्फिया का बुनियाद रखने वाला हो जाता है, कोई जामिया इब्न तैमिया बनाने वाला हो जाता है, कोई सनाबिल का बनाने वाला हो जाता है, कोई मुहम्मदिया बनाने वाला हो जाता है, और उन्हीं में से कोई जामियतुल इमाम अलबानी बनाने वाला हो जाता है। वल्लाह बहुत सारी बातें थी, मैंने कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आज कि जामियतुल इमाम अलबानी एक लंबी मुद्दत के बाद, यकीनन अमीर मोहतरम का मुझे वो जुमला अच्छी तरह याद है। मैं शेख अबू अरीब मोती रहमान के साथ दिल्ली की सरजमीन में हूँ, लोग परेशान हैं, वहाँ पर मुसाबक़े कुरान हो रहा है, शेख के साथ हम लोग बैठे अमीर मोहतरम के साथ। कदर करो इन चीज़ों की। शेख ने कहा मोती रहमान लेटर पेड मेरा है, तुम जो लिखना चाहो लिखो, जब तक जामियतुल इमाम अलबानी का मुआदला नहीं हो जाता मुझे करार नहीं आएगा। ये उनके दिल की आवाज़ थी। बाकी सारी चीज़ आपने बंगला में सुनी शेख मोहतरम से। ऐसी अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा एजाज नहीं दिया। आज मुझे कहने में ये फख्र है कि आज जिस तरह से इज्जत की निगाहों से, तकरीम की निगाहों से हम जामिया सलफिया की तरफ देखते थे, जामिया इब्न तैमिया की तरफ देखते थे, जामिया सनाबिल की तरफ देखते थे, जामिया मुहम्मदिया और जामियतुल इमाम अल बुखारी की तरफ देखते थे, इंशाअल्लाह अब पूरी दुनिया जामियतुल इमाम अलबानी की तरफ भी देखेगी। और बड़ी बात यह है कि आज पूरा हमारा हिंदुस्तान हमारे इस डाइस पे उतर आया है। मेरे मौजू का एक ख़ास हिस्सा सिर्फ मैं बतलाना चाहता हूँ कि आप जब यहाँ से जाएं मेरे अजीज़ों और मेरी अजीज़ तालिबात, तो यहाँ से जाने के बाद ये मत भूलना कि इस इदारे ने आपके पीछे किस तरह की मेहनत की है, किस तरह की कुर्बानियाँ दी हैं। तुम नहीं जानते हो और आप भी नहीं जानते हैं कि किस तरह की कुर्बानियाँ दी गई हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इस इदारे को यहाँ तक लाने में शेख मोती रहमान अबू अरीब ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि गिर पड़े, गिर कर उठे, उठकर चले, गिर पड़े, गिर कर उठे, उठकर चले। इस तरह काटी है इसने मंजिलें, इस तरह काटी है इसने मंजिलें। बहुत सारे चैलेंजों का मुकाबला करना पड़ा, तब जाके अल्लाह तबारक व तआला ने आज ये मुबारक दिन इनको दिखाया है। और आपको मालूम है 15 साल होने जा रहे हैं तकरीबन
इस इदारे को कायम हुए इस 15 साल की मुद्दत में अगर मुतीउर रहमान चाहते तो आज अपने इलाके का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हो सकते थे, लेकिन रब्बे काबा की कसम उसने वो नीयत नहीं की, बल्कि यहाँ पर कुरान और हदीस के सूरज को जगमगाने का इंतजाम किया, सारी चीज़ों को इस जामिया के लिए झोंक दिया, पूरी कुर्बानियाँ दे दी। वो जब उन्होंने खुद कहा और मुझसे भी कहा, जब हार्ट अटैक हुआ, दिल का दौरा हुआ, कहा तनवीर साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी रूह मेरी जिस्म से चली जाए और मेरा जो ये ख्वाब है ये शर्मिंदा ताबीर ना हो। यकीनन उसने कहा कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने सारी चीज़ें दी हैं, अब अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो सिर्फ ये कि जामियतुल इमाम अलबानी का मुआदला हो जाए। मेरे भाइयों, इनके पास अल्लाह ने बहुत कुछ दिया और मालूम है कि तालीम के एतबार से जो मेयार है आपने उसका अंदाज़ा लगाया है, लेकिन तामीरात के एतबार से भी आज इसका जो मेयार हो चुका है हिंदुस्तान के किसी भी बड़े जामियात से कम नहीं है। और उसी तरह से ज़मीन की उसत के हिसाब से भी अगर आप इसको देखेंगे तो आज इसके पास 15 एकड़ ज़मीन हायर है, इसके लिए तैयार है, इसके लिए जहां यहां पर माशाअल्लाह याज़िमुश्शान कैंपस तैयार है। इसमें तकरीबन 810 तालिबात हैं, इसमें 481 लड़के हैं और हिफ्ज में तकरीबन 250 बच्चे हैं और ब्राइट मिशन में 300, सब मिलाकर 1841 बच्चे हैं। मेरे भाइयों, एक घर चलाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तसव्वुर कीजिए कि 1841 बच्चे और बच्चियों को पालना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन ये जवां मर्द इंसान, लेकिन ये आलिम जय्यद जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी, जिनको लोगों ने दुआएं दी और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको मुंतखब किया कि एक ऐसा बड़ा काम कि वो बंगाल की सरजमीन जिसकी निस्बत अबुल कलाम आज़ाद की तरफ है, जिसकी निस्बत रामेंद्रनाथ टैगोर की तरफ है, जिसकी निस्बत बिंकम चंद्र चटर्जी की तरफ है और जिसकी निस्बत न जाने किन किन लोगों की तरफ है, बल्कि अगर देखें आप तो काजी नजरुल इस्लाम की तरफ भी है। लेकिन उसके बावजूद मैं हैरान हो जाता हूं जब मैं देखता हूं कि इस पूरे मगरबी बंगाल में जहां बड़े बड़े लोग पैदा हुए, बड़ी बड़ी पर्सनालिटी पैदा हुई, क्या सबब है कि आज इस सरजमीन में कोई बहुत बड़ा तालीमी इदारा मदरसा के नाम पर नहीं है। आज मेरा सीना फख्र से चौड़ा हो गया कि आज एक ऐसा इदारा इस बुढ़ियान की सरजमीन पर हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे शेख अबू अरीब मुतीउर रहमान ने कायम किया कि ये जो खला था, ये जो कमी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको पूरी कर दी। यकीनन इसके अब्बू ने, यकीनन इसकी अम्मी ने कोई नेक काम किया होगा, वो कोई लम्हा रहा होगा कि उन्होंने दुआ की होगी अपने बच्चों के लिए और बारगाहे रब्बानी में वो दुआ कबूल हो गई होगी। ये उसका नतीजा है, उसका फल है कि अल्हम्दुलिल्लाह जामियतुल इमाम अलबानी फला फूला और आज मुकम्मल शबाब पर आया है। जामियतुल इमाम अलबानी का मुस्तकबल खूबसूरत है, मगर शर्त यह है कि ये करना इनके हाथ में था, अब अपने बच्चों को इनके हवाले करना आपके पास है, आपकी जिम्मेदारी है। याद रखें, मैं ये नहीं कहता हूं कि तमाम बच्चे यही आ जाएं, वो आलम तो यह है एडमिशन का वक्त आता है बच्चों को वापस करना पड़ता है, लोग 10-10 दिन तक फाइल खोल के रखते हैं, मगर इनका आलम यह है कि 1 से 2 दिन नहीं चल पाता, दरखास्तों रिजेक्ट करना पड़ता है। बड़े बड़े लोग जो चंदा देने वाले होते हैं कहते हैं मुतीउर रहमान साहब इस बच्चे का एडमिशन हो जाना चाहिए, इस बच्चे का एडमिशन हो जाना चाहिए। शेख परेशान रहते हैं, कहते हैं कि शेख क्या करूं, जगह नहीं है, क्या करूं, जगह नहीं है। बच्चियों को लेके आते, क्यों आते हैं मेरे भाइयों? ऐसे नहीं कि सिर्फ इनका बड़ा नाम है, नहीं, बल्कि उस चीज के लिए आते हैं जिसकी गवाही हमारे अमीर मोहतरम ने दी। किसी बच्चा ने, बल्कि वो अरवा ने नज्म लिखी, बच्चे ने पढ़ा, शेख ने कहा क्या लखनऊ की टकसाली जैसी जबान है? या ऐसे नहीं हो जाता, बल्कि इसके पीछे एक चीज और है, वो ये है कि शेख मुतीउर रहमान ने इन बच्चों की तरबियत के लिए, इसकी तालीम के लिए और इसको अच्छा बनाने के लिए एक अच्छे असातिज़ा की टीम का इंतखाब किया है। और आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि अच्छे टीचर मुफ्त में नहीं आते, अच्छे टीचर हायर करने के लिए अच्छी तनख्वाह देनी पड़ती है।
अच्छी रिहाइश देनी पड़ती है, अच्छा इंतज़ाम करना पड़ता है। और शेख मोती रहमान को मैं जानता हूँ, ये तारीफ मैं इसलिए नहीं करता कि वो मेरे दोस्त हैं, बल्कि इसलिए कहता हूँ कि इन हक़ाइक़ के बगैर कोई भी इदारा, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी मदरसा या कोई भी स्कूल मेयार तक नहीं पहुंच सकता, एक स्टैंडर्ड लेवल तक नहीं जा सकता, जब तक उसके पीछे एक कामयाब असातिज़ा की टीम को न लगा दिया जाए और उसके पीछे पैसा का एक बड़ा मिक़दार न खर्च कर दिया जाए। यानी ये इसके पीछे पैसा खर्च में भी दरेक नहीं करते हैं, बल्कि जहां जिस उस्ताद की जो कीमत होनी चाहिए बिसात भर हत्तल मक़दूर वो कोशिश करते हैं कि असातिज़ा को खुश रखा जाए, ताकि ये असातिज़ा खुश रहेंगे तो इनको अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत देंगे। ये अजीज़ तलबा यहाँ से आप पढ़ के जाएंगे, यकीनन फारिग हो गए, लेकिन सच्ची बात मैं आपको बताऊं, आज आप फारिग नहीं हुए, क्योंकि फरागत सिर्फ शहादतों के हासिल करने का नाम नहीं, सर्टिफिकेट और डिग्रियों के हासिल करने का नाम नहीं, बल्कि जिस दिन आपको एक हाथ में सर्टिफिकेट दी जाती है, डिग्री दी जाती है, उसी दिन आपके ऊपर एक और अमानत दी जाती है, और वह अमानत इस कदर भारी है कि जिसको लेने से पहाड़ों ने इनकार किया और उसको नहीं संभाल पाया। लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। ए मेरे फारिगीन तलबा, ए मेरे अजीज़ों, आप फारिग ज़रूर हो रहे हैं, सच्ची बात यह है कि आप फारिग नहीं हो रहे हैं, बल्कि आज आपके कंधों पर वो बोझ भी डाला गया कि जिस बोझ को उठाने से ये पहाड़ लरस गए, अगर उस पर डाला जाता तो वो झुक जाता, रेजा रेजा हो जाता। अल्लाह ने उसकी ताबीर यूं बयान की, लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। ये बोझ जो पहाड़ों ने इनकार कर दिया उठाने से, डिग्रियां तुम्हारे एक हाथ में दी जा रही हैं, दूसरे हाथ में तुमको वो अमानत सौंपी जा रही है जिसको पहाड़ों ने उठाने से इनकार कर दिया। इसलिए आज के बाद से आप सिर्फ एक मामूली तालिब इल्म नहीं, बल्कि उस अमानत के सच्चे अमीन हैं, और इस अमानत को जिंदगी भर ढोना आपकी जिम्मेदारी है। उसमें अगर काहिली करेंगे, उसमें कमी कोताही करेंगे, तो कल क़यामत के मैदान में आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए ये तहिया करो, यह आज़्म करो कि हम यहाँ से जाएंगे तो अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करेंगे और अपने इदारे का नाम भी रोशन करेंगे, और अल्लाह ने जो हमको अमानत दी है हम इसको भी मुकम्मल निभाने की कोशिश करेंगे। यकीनन अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीनन हमें खुशी होगी और बेइंतहा खुशी होगी, और अगर ये खुशी यूं ही चलती रहे तो शेख मोती रहमान इससे बेहतर और बेहतर और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सच्ची बात यह थी कि जो कुछ मैंने सोचा था कुछ नहीं कह सका, जज्बात में जो कुछ आया बोलता चला गया, लेकिन सच्ची बात यह है कि वह बात, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। बहुत ही मुबारक, वरने तो दिन तो यह था कि मैंने कहा था कल कि हम हुए तुम हुए कि अबू अरीब हुए, हम हुए तुम हुए कि अबू अरीब हुए, सब के सब आज गम से करीब हुए, लेकिन आज हो ही नहीं पाया वो माहौल। इतनी खुशी छा गई मुआदला की, न मैं रो सका ना आपको रुला सका। नहीं तो मैं सोच के आया था कि आज दरिया बहाऊंगा आपकी आंखों से, किस तरह आपने 10 साल 20 साल गुजारा है बताऊंगा आज, और बिना रोए जाने नहीं दूंगा। लेकिन खुशी का समंदर इस कदर बड़ा हो गया कि उसी में डुबकी लगाते लगाते बिल्कुल वो हो ही नहीं सकता है। अल्लाह करे फिर मैं वही कहूँगा, दुआ करो फ़ज़ा यूं ही ये ख्वाब जागते रहें, दुआ करो फ़ज़ा यूं ही ये ख्वाब जागते रहें, ये खुशबुएँ जमा रहें, गुलाब जागते रहें, गुलाब जागते रहें, जामिया फलता फूलता रहे, हम रहें न रहें, ये उलमा रहें न रहें, लेकिन उन सब की दुआ इस जामिया के लिए काफ़ी है। इंशाअल्लाह जामिया फलता फूलता और सदा बाहर रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, बारे अल्लाह ये जो नया दुफ़ा है इसको तो कामयाबी की हर मंजिल अता कर, और इस इदारे को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा, नज़र बद से बता, हाथ सिदों के हसद से बचा, और इसको मज़ीद बुलंदियाँ दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।